جو نئی سیریل اس سال کی سٹارٹ کی ہے، ڈیوائن وزڈم، الہی حکمت، الہی دانش، اور اس کا جو آج کا سرمن ہوگا رشتے درائی کا منبع، اسکرپچر آرگن آف وزڈم۔ تو نوشتے درائی کا منبع کے تعلق سے ہم سیکھیں گے کہ یہ جو نوشتے ہیں، یہ جو خدا کا کلام ہے، الہام ہے، یہ حکمت کا جو ہے وہ منبع ہے۔ تو میں چاہوں گا یہ میرے ساتھ ورس پڑھیے خداوند کے کلام میں سے، خداوند کے کلام میں سے آئیے 2 تیموتھیوس اس کا 3 باب، اس کی 15 آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور سلام اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ ایک ریفرنس میرے ساتھ لگا لیے، لوکا کی انجیل 24 باب 27 آیت خداوند کے کلام میں سے۔ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی وہ ان کو سمجھا دے۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ آگے سنیے، انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا ہے۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ 30ویں آیت سنیے، اور جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر اس کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ شکر سے بیٹھ جائیں۔ میں چاہوں گا پاک روح کے لیے، روح القدس کے لیے ہم زوردار تالیاں بجا کر خدا کے نام کو جلا دیں گے۔ جتنے ہم لوگ ہیں بہت کم تالیاں خدا کے جلال کے لیے، پاک روح کے لیے، روح القدس کے لیے زوردار تالیاں بجا کر خدا کے نام کو جلا دیں گے۔ نوشتے درائی کا منبع، نوشتے یہ جو خدا کا کلام ہے، اسکرپچر، نوشتوں کو اسکرپچر کہتے ہیں۔ اسکرپچر یعنی خدا کا کلام، اسکرپ سے لیا گیا۔ یہ اسکرپ یعنی جو اسکرپ لکھا جاتا ہے اس سے مراد، یعنی یہ جو نوشتے ہیں یہ خدا کا کلام ریٹن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو خدا کا کلام آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب نوشتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، یہ ریٹن لکھے ہوئے ہیں۔ اور نوشتے جو ہیں یہ دنائی حکمت کا جو ہے وہ منبع ہے۔ ان کے اندر حکمت بہت بری ہوئی ہے خدا کے کلام میں، نوشتوں میں۔ حالانکہ پوری بائبل کے اندر آپ دیکھیں طریقی کی کتابیں ہیں اور نصر کی کتابیں ہیں اور دیگر ہسٹری کی کتابیں اس کے اندر ہیں، مگر جو نوشتوں کے تعلق سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ نوشتے جو مسیح کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جو نبیوں کے ذریعہ سے، جو رسولوں کے ذریعہ سے، جو شاگردوں کے ذریعہ سے، جو رسولوں کی خدمت کے ذریعہ سے، جو پروفیٹ پرانے نامہ کے اندر ہیں، انہوں نے نوشتوں کو بیان کیا ہے۔ نوشتے بیان کرتے تھے، نبوتیں کرتے تھے، روح القدس ان سے نبوت کرواتا تھا، اور ہر ایک لفظ شوشہ خدا کا جو ہے وہ نوشتہ ہے خدا کا۔ یعنی خدا کی سانس نوشتہ الہام جو ہوتا ہے، اس کا مطلب خدا کی سانس کیا ہے؟ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں زندہ ہیں۔ یہ جو خدا کا ایک ایک نوشتہ جو کرائسٹ کے مرنے جی اٹھنے کو بیان کرتا ہے، کرائسٹ کی ساری ذات کو بیان کرتا ہے، اور ساری زندگی میں اور آپ لگے رہے خدا کی ذات کو جاننے میں ہمارا دھیان رہے، کیونکہ خدا کی ذات اس قدر گہری ہے، یہ گہرے سمندروں سے گہری ہے بھائی خدا کی ذات۔ کرائسٹ کو کوئی جان جائے، ساری زندگی لگا رہے، تو لگا رہنا ہم نے جاننا ہے مسیح کو، نوشتوں کو جاننا ہے، مسیح کے تعلق سے جو باتیں کی گئی ہیں ان کو جاننا ہے، اور یہ حکمت کا منبع ہے۔ اور حکمت کا مطلب ہے کسی علم کو سمجھ کر اسے استعمال کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں وزڈم، دانش۔ اور خداوند کے کلام میں ہماری جو مرکزی آیت ہے دانیل کی کتاب 12واں باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ حکمت افزوں ہوگی۔ حکمت کیا ہوگی؟ بڑھے گی۔ حکمت
हमारी सीरियल है हिकमत, डिवाइन विजडम, आसमानी हिकमत। हमें क्या करनी है? आसमानी हिकमत चाहिए जिससे हम मैटर सॉल्व कर सके, दुनिया के अंदर जिंदगी बसर कर सके। और मैं आपको बताऊं, आप सब दानिश्वर लोग हैं, बोलिए आमीन, क्योंकि खुदा के कलाम को सुनते हैं। दो तरीकों से दनाई आती है, एक तो खुदा के कलाम के जरिए से आपको दनाई मिलेगी, और दूसरी पाक रूह आपको दनाई देगा। और ये खुदा के खादम जो आपको टीच करते हैं, कलाम सुनाते हैं, तो ये रूह कुदस के जरिए से ही आप तक ये बातें लेकर आते हैं, कलाम में से लेते हैं, फिर पाक रूह को गाइड करते हैं, तो फिर वो बातें आप तक आती हैं, दनाई की बात, फिर आपको दनाई आती है। तो मैंने बताया दनाई किसी अगर जगह से आएगी तो वो रूह कुदस के जरिए से, खुदा के कलाम को सुनने से आती है। और याद रखिए, ये दनाई जब आती है, विजडम जब आती है, अकल जब आती है, तो फिर आपके मैटर सोल्व होते हैं। घरों के अंदर अगर हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़ा रहता है, इसका मतलब उन दोनों के अंदर हिकमत, दनाई, विजडम नहीं है। तो भाइयों, ये दनाई होगी तो हस्बैंड को पता होगा मैं अपनी बीवी के साथ हैंडल कैसे करना है। ये दनाई दानिश की वजह से। बीवी को पता है खामद के साथ कैसे चलना है, तो दनाई ही के साथ चलेगी। तो अगर दनाई होगी, विजडम होगी, इसलिए लिखा है कि हिकमत पुकारती है, दनाई पुकारती है। खुदा के कलाम लिखा, सुलेमान ने हिकमत मांगी खुदा से, दौलत नहीं मांगी, उसने दौलत का सवाल नहीं किया, उसने शोहरत नहीं मांगी, कुछ भी नहीं मांगा, उसने दुश्मन की जान नहीं मांगी, उसने कहा खुदा मुझे हिकमत, विजडम, ताकि मैं अपनी रियाया का क्या कर सकूं, इंसाफ, डील करना जान जाऊं। मुझे पता नहीं भेड़ों का कैसे उनको डील किया जाता है। तो भाइयों, घर को मैनेज करने के लिए भी हिकमत, दनाई की जरूरत है। तो जिस घर के अंदर दनाई नहीं ना, विजडम की कमी है, वो घराने आबाद नहीं रहते। याद रखिए, शादी करने का शौक और शादी का भी नॉलेज, हिकमत, दनाई नहीं है। पता है खामद को ये मेरी बीवी है, उससे दनाई नहीं है। बीवी को दनाई नहीं है हस्बैंड के साथ कैसे डील करें, घराने को कैसे डील करना है, जॉब को कैसे डील करना है, दुनिया के अंदर रहते हुए बच्चों को कैसे डील करना है, वो दनाई से होगी। और खुदावंद के कलाम लिखा, मांगना है हमें ये दनाई, क्या करना है, ये मांगने से मिलती है। लिखा वो तो पूछों पे पुकारती है, जहां पे क्रॉस रोड मिलते हैं वहां पर दनाई जो है क्या करती है, पुकारती है। लिखा है होशियारी को दनाई ने अपना घर बना लिया। कहते बड़ा चलाक है, कहते हैं ना, दनाई वहां पर ठहरती है जिसके अंदर होशियारी है, प्रूडेंस इंग्लिश में लफ्ज है। तो प्रूडेंस होगी, इसका मतलब दनाई वहां पर घर बनाती है। अब देखिए ना, बड़ा चलाक सब नजर आते हैं दूसरे लोग, यार बड़ा बंदा तेज है, कहते हैं अपने आप को, कहते हैं हाँ भाई, दूसरे को क्यों कहते हैं दूसरे को भला, क्योंकि नजर आता है। वो क्या आता है, दूसरे आपको भी देख लेंगे, उनको भी नजर आएगा, आपके अंदर नजर आ जाएगा जो कुछ है। दनाई है, या दुनिया का सबसे जो बेअकल शख्स है ना, जिसके पास दनाई नहीं, अकल नहीं है, वो भी अपने आप को दुनिया के अंदर समझता है मैं दनाई से मामूल हूं, वो भी कुछ समझता है। तो कहने का मकसद है, ये दनाई खुदा के कलाम से आती है। नविश्ते दनाई का मंबा है, नविश्ते खुदा का कलाम, स्क्रिप्चर, ये खुदा का रिटन जो कलाम लिखा हुआ है हमारे पास है। तो भाई लोगोस भी है, लोगोस रिटन लिखा हुआ, खुदा ने नबियों के जैसे लिखवाया, रूह कुदस के जैसे लिखवाया गया है, नबियों के जैसे ये खुदा का कलाम लिखवाया गया। इसके अंदर हिकमत भरी हुई है। कहते हैं कोई चीज फूट निकलती है, चश्मे पहाड़ों से फूट निकलते हैं, ये वो चश्मा है भाई हिकमत का जो कलाम से फूटता है। ये खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तरीका, हालेलुया हालेलुया। ये हिकमत भाइयों आपको गरीब नहीं रहने देगी। मेरी बात सुनिए, जो जुमला बोलने लगा, हिकमत आ गई तो आपके पास वेल्थ आ जाएगी, आपके पास दौलत आ जाएगी। हिकमत को पालेंगे ना, लिखा ये सोने चांदी मरजान से भी ज्यादा कीमती है। आइए जरा खुदा के जलाल के लिए हालेलुया। रुपए पैसों से ज्यादा कीमती, हीरे मोतियों से ज्यादा कीमती, सोने चांदी से ज्यादा कीमती, मरजान से ज्यादा महंगी। ये वो हिकमत है जिसकी बात करने को है। दुनिया की हिकमत का इल्म अभी अब तक नहीं पहुंचा। देखिए आसमानों का नॉलेज, दुनिया साइंसदान आसमानों पर चले गए, क्या उनका नॉलेज है? केमिस्ट्री का नॉलेज, फिजिक्स का नॉलेज, बायोलॉजी का नॉलेज। अब दुनिया के अंदर देखिए नॉलेज है, ये दुनियावी नॉलेज। बाइबल में लिखा है शैतानी नॉलेज है, फिर लिखा है नफसानी नॉलेज है।
پھر دنیاوی نالج ہے، یہ دنیا کا نالج ہے. لوگ دنیا کے نالج کے اوپر بہت اوپر نظر آتے ہیں، مگر روحانی کون دنائی لے گا؟ کوئی حکمت کون لے گا جو روحانی ہے، جو آسمانی ہے؟ کیونکہ مجھے اور آپ کو آسمانوں پر جانا ہے، تو آسمانوں کا علم ہوگا تو تبھی جا کر وہاں پر ورشپ کر سکیں گے نا. زمین پر نقشہ نظر آئے، یہ آسمانی لوگ ہیں، ان کے اندر آسمانی دنائی پائی جاتی ہے، یہ دانشور لوگ ہیں. پتہ چلنا چاہیے، نظر آنا چاہیے. تو لکھا ہے حکمت نے اپنا گھر بنا لیا ہے. ہاللیلویا. سلیمان کہتا ہے مبارک ہے وہ جو حکمت پاتا ہے، مبارک ہے وہ جو حکمت، وزڈم، دانش خدا کا بندہ دانیل کیا کہتا ہے؟ دانش افزوں ہوگی، دانش بڑھے گی، یہ بڑھنی چاہیے. لکھا ہے بتھیرے تفتیش و تحقیق کریں گے، اور لکھا ہے کہ دانش افزوں ہو جائے گی. دانیل کو کہا کتاب بند کر دے، اس کو بھی بڑی دنائی تھی اس کے پاس تھی، دانیل کے پاس. اب دیکھیے خواب آپ نے دیکھا ہے، آپ بھول گئے ہیں، مگر اس نے لکھا دنائی سے، خدا سے دنائی مانگی. تو لکھا خواب بھی بادشاہ کا بتایا کیا آیا، اور پھر اس کی تعبیر بھی بتائی. یہ اتنی بڑی دنائی کی باتیں ہیں. لکھا اس دور کے علوم جو بڑے عالم سکولر لوگ تھے اس دور کے اندر، لکھا اس دور میں سے 10% وہ زیادہ ان سے آگے تھا حکمت. کیوں؟ خدا کے کلام سے محبت کرتا تھا، دعا کرتا تھا، کلام کو پڑھتا تھا، سکرپچر کو پڑھتا تھا. بھائیو یہ سکرپچر جو ہے یہ خدا کا کلام، ریٹن آف ورڈ آف گاڈ، یہ جو ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے، لکھا ہوا ہے. تو لوگوس جو ہوتا ہے بھائیو یہ ریٹن لکھا ہوا ہے. ریما بھی ہوتا ہے جو فوراً فریش مکاشفہ نازل ہوا ہے، وہ بھی ریٹن سے تعلق رکھتا ہے. یعنی کہ اپنے پاس سے کوئی خیال آیا تو بیان کر دیتا، خادم بیان کر دیتے، ایسا نہیں ہے. وہ بھی ریٹن کے ساتھ ہی میچ کرے گا، فریش ریما جو آتا ہے خدا کا کلام. تو کہنے کا مقصد ہے نوشتے جو ہے وہ کیا ہے؟ دنائی کا، حکمت کا منبع ہے، حکمت کا. تو بھائیو دنائی لینا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی سے دنائی پھوٹ نکلے تو خدا کے کلام کو لینا ہوگا، خدا کی آواز کو سننا ہوگا، روح القدس کے ساتھ، فیلوشپ کے ساتھ خدا کی حضوری میں آئیں تاکہ دنائی آپ کی بڑھے. تو لکھا یہ تو روز روز بڑھنی چاہیے، کم نہیں ہو. یہ تو دنائی ہماری بڑھنی چاہیے خدا کے کلام کو سننے سے، روح القدس کی فیلوشپ کے ساتھ ہماری دنائی بڑھے گی. گھر کو مینج کر پائیں گے اور فیملی کو مینج کر پائیں گے. دنائی خداوند کے کلام لکھا بڑھنی چاہیے. خدا کے کلام کے اندر بھائیو لوگ گھبرا جاتے ہیں حالاتوں کو دیکھ کر. حالات جیسے بھی چلتے ہیں، کرونا آئی لوگ گھبرا گئے، کووڈ-19. پھر آج دنیا کے اندر جس طرح کے حالات ہیں، مہنگائی بہت ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بنے گا. لیکن جو لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں، جن کے پاس دنائی ہے، وہ جانتے ہیں کہ خدا ہماری کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے. خدا ہمیں ہر لحاظ سے بچائے گا، چھڑائے گا. وہ چھڑاتا ہے، خدا بچاتا ہے یا چھڑاتا ہے یا نہیں چھڑاتا، ہمیں محفوظ کرتا ہے، وباؤں سے بچاتا ہے. فلڈ ہمیں ڈبو نہیں پائیں گے، دکھ مصیبت پرابلمز ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ خدا یہوہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے. بولیے آمین. خدا مرا نہیں ہے، خدا کیا ہے؟ زندہ ہے. خدا کیا ہے؟ بولیے خدا کیا ہے؟ اور چھوٹی سی بات بتاؤں گا. ایک خادم تھا، اس کے تعلق سے میں بتانا چاہوں گا. بہت بڑا خادم تھا. تو وہ خدا کے ساتھ چل رہا تھا. تو اس کی بیوی نے ایک دن کالے کپڑے پہن کر اس کے پاس بیٹھ گئی. وہ کہنے لگا کہ تو کی رات دن کالے کپڑے پائے نے، افسوس سے پئی کی مسئلہ کی ہے. وہ کہندی خدا مر گیا ہے. خدا کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا خادم، وہ کہتا ہے خدا کیسے مر سکتا؟ تو اس کی بیوی کہتی تجھے نہیں پتا. وہ کہتا کیا ہوا ہے؟ خدا کبھی مر سکتا ہے؟ کبھی نہیں مر سکتا، خدا تو نہیں مرتا. اس نے کہا تو پھر کیوں افسوس نہ آ گیا، کیوں خوف کے اندر ہے، خدمت سے کیوں گھبرا گیا؟ اٹھ اور کیا کر، خدا کی منادی. اگر وہ زندہ ہے تو بھی زندہ ہے. تو ان حالاتوں سے گھبرا گیا، مشکل سے گھبرا گیا. تو دنیا کا ٹاپ کا خادم ہے وہ، اور لکھا ہے وہ گھبرا گیا خدمت میں. تو اس کی بیوی کے اندر دنائی دیکھیے. اس نے کہا تو پھر کیوں گھبرا گیا ہے، اٹھ منادی کر. اور دیکھیے اچھی جو بیوی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ خاوند کو کیا کرتی ہے؟
भाई ले आए कि खुदा के ज़रिए। हवा से गुनाह हुआ, हवा को शैतान ने फल खिला दिया, उसने अपने खामद को भी क्या किया, खिला दिया, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। जो भाइयों रूहानी है, खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो हिकमत से वो ममूर है। अगर खामद रूहानी है तो बीवी को चाहिए उसे फॉलो करे, अगर बीवी खुदा के साथ रूहानी है तो खामद को चाहिए उसे फॉलो करे। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों खुदा परस्त हैं, उनको बच्चों को चाहिए कि वो क्या करें, खुदा को फॉलो करें, माँ बाप को फॉलो करें। अगर माँ बाप खुदा से दूर है, बच्चे खुदा के साथ चल रहे हैं, तो फिर माँ बाप को चाहिए बच्चों को फॉलो करें, खुदा की जुरी में आकर क्या करें, खुदा से प्यार करें, खुदा की वर्शिप करें। खुदा जिंदा है और उसके लोग भी क्या है, जिंदा है। और खुदावंद के कलाम में यहाँ पर हमने हवाला लिखा था, पढ़ा था, सुनिए। और तू बचपन से उस रिश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्शते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, पौलुस रसूल कहता है हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम कहते हैं सांस, खुदा का सांस। ये जो खुदा का कलाम है, ये खुदा का सांस है। आमीन। जिस तरह मैंने बताया, ये हवा आपकी जिंदगी में आती है ना, तो आप सांस लेते हैं, हवा बंद हो जाए ना, आप सब फिनिश। और ये खुदा का क्या है, बोलिए, ये सांस है, खुदा का कलाम लिखा इल्हाम। हर एक सहीफे का इल्हाम जो है, इल्हाम होता है खुदा की सांस। तो लिखा है ये सांस, जब लिखा है आदम को मट्टी से बनाया गया ना, वो स्टेचू था, जस्ट मट्टी से बनाया गया स्टेचू, कोई जान नहीं थी उसके अंदर। खुदा ने लिखा ये दम उसके अंदर डाला, लिखा वो उठ खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये जो भाइयों खुदा का कलाम है, ये सांस है, ये आपको जिंदगी बख्शता है, फिर तो गॉड है। ये खुदा की सांस है भाइयों, ये नमिश्ता इल्हाम, खुदा की सांस जब हमारी जिंदगी के अंदर आती है तो हमारे अंदर क्या आती है, जिंदगी आती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम इस कलाम को पढ़ते हो, इसलिए पढ़ते हो ताकि तुम जिंदगी हासिल करो। तुम क्या करो, ये तो जिंदगी लेने के लिए भाइयों खुदा का कलाम, ये तो भाइयों मंबा है हिकमत का, धनाई का मंबा है। इसे लीजिए ताकि धनाई बढ़े, आपकी जिंदगी में अफजूल हो धनाई। अब रोज रोज खुदावंद में बढ़ते चले जाए, और हमें बढ़ना है भाइयों। खुदावंद के कलाम लिखा है शागिर्दों को, खुदावंद के कलाम लिखा है यीशु मसीह ने शागिर्दों को क्या किया, लिखा है उनको धनाई दी, उनको उनका ज़हन खोला ताकि वो क्या करें, खुदा के कलाम को समझ सके, इस बाइबल को रिटन को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। खुदा ने उसका ज़हन खोला। तो अगर ज़हन बंद है तो खुदा से कहे खुदा ने खोल दे, खुदा खोल देगा ज़हन। खुदावंद के कलाम लिखा है हबशी खोजा जा रहा था, गैर कौम का शख्स था, लेकिन वो क्या पढ़ रहा था, सहीफे, अंबिया सहीफे। लिखा है यशाया का सहीफा वो पढ़ता जा रहा था, और लिखा क्या था, रिटन वहां पर कलाम क्या लिखा हुआ था कि वो उसे भेंट की तरह जिबा करने को ले गए। वो परेशान हो गए, भेंट को जिबा करने के लिए नबी किसके बारे में कह रहा है, ये सहीफा क्या बयान कर रहा है। वो वहां पर रुक गया। रूह कुदस ने, पाखरू ने लिखा है, खुदा के खादिम को फिलिप्पस को मौका भेजा, उसका भाग मर्द खुदा हबशी खोजा को समझ नहीं आ रही, उसे जाके समझा। और लिखा फिलिप्पस धनाई से ममूर था, रूस से ममूर था, और लिखा रथ के साथ हो गया, और रथ भाग रहा है, और लिखा वो भी भागना शुरू हो गया, मेरी मां ने भाग रहा होगा। इसलिए वो कहता है हबशी खोजा, जो तू पढ़ता है उसकी समझ भी तुझे, वो कहता है जब तक मुझे कोई समझाए ना, कैसे समझ आएगी। तो खाली बाइबल को पढ़ लेते हैं, वेल एंड गुड, हिकमत आती है, लेकिन सिखाने वाला काहिन खुदा ने दिया है। काहिन सिखाने वाला हो, जिसके बाद दनाई हो, ये बातें दनाई से है, ये खुदा के रूह की दस के जैसे भाइयों। तो लिखा है वहां पर खुदा के कलाम लिखा, खादम ने क्या किया, मर्द खुदा ने क्या, हबशी खोजा को लिखा, एक एक बात वहां पर लिखा है, वो लिखा है एक एक बात समझाई। ये तो खुदा का भेंट, उसने पढ़ा ना कि ये उसे भेंट की तरह जिबा करने को ले गए। वो कौन था जिबा, कौन किसको नबी कह रहा है, तो उसने बताया ये खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो मर कर जी उठा है, उस पर ईमान लाने वाले हमेशा जिंदा रहेंगे। तो उसने फौरन क्या किया, तारीफ पूरी लगनी चाहिए से के बजाय। हालेलुया। सुनिए, जब उसने ये दनाई सुन ली, कलाम की बातें सुन ली, हिकमत की बातें सुन ली, खुदा के कलाम की बातें सुनी, तो उसने कहा
कि अब ये पानी भी नजदीक है, मुझे क्या दिया जाए? बपतिस्मा दिया जाए। कौन सी चीज मुझे बपतिस्मा लेने से रोक सकती है? जिनके पास दनाई आ जाती है, हिकमत आ जाती है, खुदा के कलाम को सुन लेते हैं, वो फिर बाज नहीं आते, वो तो भैया ईमान फौरन बपतिस्मा ले लेते हैं। तो जो कहते हैं फिर वो फिर ही हो जाते हैं यार की दुनिया के अंदर, कहते फिर लेंगे फिर तो वो दुनिया में क्या हो जाते हैं? फिर ही हो जाते हैं, फिर नहीं खुदावंद के पास आते, वो दुनिया में निकल जाते हैं। जब मौका मिल जाए, दनाई की बातें आ जाए, खुदा का कलाम आपको कायल करे, सुन लीजिए, उसे कबूल करना चाहिए ताकि आप दनाई को हासिल करें, मसीह को हासिल करें, हमेशा की जिंदगी को क्या कर रहे? हासिल करें। खुदा का कलाम हिकमत का मंबा है, इसको लीजिए, इसको पढ़िए, इसको सुनिए, और फिर आपकी जिंदगी से हिकमत के चश्मे जारी हो जाएंगे। भाइयों, ये दनाई का मंबा है, इसको कोई पढ़े तो सुने, इसको ले। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि जो है वो हमें क्या करती है, ये लिखा है हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, लिखा है तलीम। क्या लिखा है? पहली बात तलीम, यानी ये हमें इल्म देती है। खुदा का कलाम हमें इल्म देता है, नॉलेज देता है, विजडम, खर्द की रूह हमें मिलती है, अंडरस्टैंड कर पाते हैं खुदा के कलाम को, दनाई बढ़ जाती है ना। तो लिखा है सबसे पहले क्या करती है, ये हमें इल्हाम से तलीम देती है, और तलीम के बाद यहाँ पर लिखा है कि हमें हम पर इल्जाम लगाती है। पहले तलीम सिखाता है खुदा का। यहाँ पर सुनिए खुदा के कलाम, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तलीम और इल्जाम, पहले तलीम उसके बाद इल्जाम। इल्जाम क्या होता है भला? आपने खुदा का कलाम सुना है कि हमें 10वां हिस्सा खुदा को टाइट देनी है, नहीं देते। खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें टाइट देनी है, तो खुदा का कलाम उंगली रखेगा। जो नहीं टाइट देता वो क्या कहेगा? यार तो मेरे कलाम हुआ, क्योंकि वो देता नहीं है। इसका मतलब उसका ज़हन खुल गया। अगर किसी के ने गुनाह किया, खुदा का कलाम कहता है गुनाहगार खुदा की बादशाही में, नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो उसे ये दनाई मिली है खुदा के कलाम से, वो कहेगा हाँ यार मेरे अंदर ये कमी है। उंगली रखी खुदा के कलाम ने, इल्जाम लगाता है खुदा, इल्जाम देता है खुदा, ताकि हम क्या करें? जिंदगी पा जाए, हमारा ज़हन खुल जाए। ज़हन खुल जाता है जब हम क्या करते हैं, उस बदी को, गुनाह को छोड़ देते हैं, तो फिर इसका मतलब हम खुदा में आ जाते हैं। आमीन। हम इल्जाम से छूट जाते हैं। तो हमें अपनी जिंदगी पे गौर करना है। यहाँ पर लिखा है खुदा का हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तलीम, इल्जाम, और लिखा है असलाम, और फिर लिखा है रासबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। यानी मर्दे खुदा, मैन ऑफ गॉड, यानी आप लोग जो हैं वो क्या बने? कामिल बने। ये सहीफे हमें, खुदा का कलाम हमें क्या बनाता है? कामिल बनाता है। बोलिए क्या बनाता है? हम कामिल हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। खुदा का कलाम हमें कामिल करता है। तो कामिल होने के लिए हमें भाइयों खुदा के सहीफों को सुनना है, खुदा के कलाम को सुनना है। और यहाँ पर पौलुस रसूल अपने शिगिर्द तीमुथियुस से कहता है कि तू बचपन से इन सहीफों से क्या है? वाकिफ है। पौलुस रसूल अपने शिगिर्द तीमुथियुस से क्या कहता है? तू बचपन से इन सहीफों से, कलाम की बातों से क्या है? वाकिफ है। सुनिए क्या है? वो कहता है मेरा शिगिर्द जो है वो बचपन से वाकिफ है। हम बच्चों को संडे स्कूल करवाते हैं ना, वो छोटी छोटी बातें सीखते हैं खुदा के कलाम के तल्लुक से, मसीह के तल्लुक से, मसीह के मरने जी उठने के तल्लुक से। इनको सहीफा कहते हैं। ये बातें सीखते हैं ना, और लिखा है उसका शिगिर्द जो था तीमुथियुस, वो बचपन ही से लिखा है इन सहीफों से वाकिफ है। और कहता है वो जानता हूं कि तेरी माँ और तेरी नानी लुईस और तेरी माँ यूनिके जो इन नविश्तों से वाकिफ थी, यानी तुम्हें सिखाए हैं। यहाँ पर 2 मुकद्दस औरतों के नाम आए हैं, तेरी नानी लुईस और तेरी माँ यूनिके ने इन सहीफों को तुझे सिखाया। देखिए आज के दौर में तो बहुत मुश्किल है, दुनिया की कहानियां ही हमें नानियां दादियां जो सिखाती हैं, मगर वो कहते हैं उस दौर के अंदर वो रूहानी औरतें थी, यहूदी औरतें थी, और तीमुथियुस को उन्होंने मसीह के तल्लुक से, सहीफों के तल्लुक से बता रखा था, मसीह के तल्लुक से बता रखा था। और लिखा है कि जब पौलुस ने आकर वहां पर खिदमत की तो फौरन उन लेडी ने क्या किया? फौरन सहीफों से वाकिफ थी, फौरन जान गई कि ये खुदा का बंदा है, अपने घर में ले आई। और लिखा तीमुथियुस ने फिर जो है वो उसके साथ, पौलुस रसूल के साथ खिदमत का काम किया। तीमुथियुस जो उसका शागिर्द था, लिखा बचपन से सहीफों से वाकिफ था, इस कलाम से वाकिफ था। मुझे और आपको भी इस कलाम से भैया बचपन से वाकिफ होना है। और अगर अभी भी आप खुदा के सहीफों से वाकिफ है, खुदा के कलाम को सुनते हैं,
तो भाइयों मुबारक लोग हैं, दनाई बढ़ेगी। तो लिखा है थिमोथियस जो उसका शिगिर्द था, उसने कहा तू बचपन से तेरी माँ और तेरी जो नानी है लुइस और तेरी माँ यूनिके ने क्या किया, तुम्हें ये नविश्ते सुनाए हैं, और वो रूहानी था शख्स, इसलिए आपके बच्चों को सीखना पड़ेगा, खुदा की हुजूरी में लाइए, संडे स्कूल में भेजिए, खुदा के कलाम को सुनने के लिए खुदा की बारगाह में लेकर आइए, ताकि वो सहीफों से वाकिफ हो जाए, कलाम से वाकिफ हो जाए। और लिखा बड़ा होकर वो खुदा का बड़ा जबरदस्त सुरमा बना, जैसे पलूस खुदा का सुरमा था वैसे ही, क्योंकि पलूस भी बचपन से उन सहीफों से, इन सहीफों से वाकिफ था, खुदा के कलाम को जानता था। तो भाइयों जिनके पास सहीफे खुले हुए हैं, जो कलाम से वाकिफ है, जो कलाम को सुनते हैं, भाइयों जो कलाम को जानते हैं, तो फिर भाइयों तनाई उनके अंदर फूट निकलती है, फिर उनकी जिंदगी में हिकमत, तनाई, विजडम की भाई मार्फत, खर्द की रूह आती है, वो तमाम मामला को हैंडल करना जानते हैं, क्योंकि खुदा का रूह उनकी जिंदगी के अंदर काम करता है। सहीफे जो हैं ये हिकमत का मंबा है, सहीफे जो हैं ताकि हम कामिल बने, ताकि हम क्या करें, नेक काम के लिए नेक काम करने वाले बन जाए, कामिल बने। और खुदावंद के कलाम के अंदर एक जगह पर मैं आखिरी वाक्य बताऊंगा, यीशु मसीह जा रहा था मूस के इलाका के अंदर, लिखा मूस की राह पर दो शिगिर्द जा रहे थे, और लिखा है कि वो आपस में बातें करते जा रहे थे। क्या बातें करते जा रहे थे कि सुना है कि खुदा का यीशु मसीह जो है, जिन्होंने मसलूब किया था उनको रोमी हुकूमत ने, सुना है कि वो जिंदा हो गया है। तो यीशु मसीह लिखा है उनके साथ राह में हो लिया, वो बातें करते जा रहे हैं। लिखा है यीशु मसीह उनको सहीफों के जरिए से बयान करने लगे, उन्होंने नहीं पहचाना यीशु मसीह है। तो फिर यीशु मसीह ने कह दिया उनको कि ए कम ईमान वालों, तुम नबियों और सहीफों पर ईमान रखते हुए तुम्हारा ये हाल है। यानी मैं, तुम कह रही हो सुना है कि मसीह जिंदा हो गया, मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं, यानी हालेलुया। तो तू यानी खुदा के कलाम के सहीफों से भी वाकिफ होकर, तो इस कदर मेरी कम ईमान है तुम्हारी जिंदगी में कि सुना है, बल्कि ये कहो कि मसीह जिंदा हो गया, ये ईमान हो जाए। तो लिखा सुना है उन शिगिर्दों में कहने लगे। तो जाते जाते उनको पता नहीं चला मसीह यीशु है, लेकिन यीशु मसीह लिखा खोल खोल कर सहीफे बयान कर रहा है। ज़बूर के अंदर मेरे बाबत ये लिखा है, यशाया के सहीफा में मेरे मुतालिक ये लिखा है, फलां फलां हवाले सहीफे खोल खोल कर यीशु मसीह उन शिगिर्दों को बताता चला गया। और लिखा जब वो यीशु मसीह से जुदा होने लगा, उनका गांव आ गया, तो वो कहने लगे नहीं नहीं तू यहाँ खाना खा कर जा, वो मुसाफिर समझा ना उन्होंने। तो जब वो खाना खाने बैठा अंदर, तो जब उसे रोटी तोड़कर अपने शिगिर्दों को दी, तो शिगिर्दों ने पहचाने ये तो खुदावंद का बेटा यीशु मसीह है। आमीन। और लिखा है कि यीशु मसीह फौरन वहां पे गायब हो गया, और लिखा है वो कहने लगे वो तो यीशु मसीह जिंदा होकर हमारे पास है, हमें पता ही नहीं चला। वो कहने लगे क्या जब वो सहीफों की बात कर रहा था, अपने बारे में बात कर रहा था, तो हमारा दिल खुशी से नहीं भर गया था? हमारा दिल, बोलिए, खुशी से नहीं भर गया था। इसका मतलब सहीफे हमारे अंदर खुशी पैदा करते हैं, खुदा का कलाम हमारे अंदर खुशी लाता है। तो भैया खुदा के सहीफों को पढ़ना, कलाम को पढ़ना, मसीह के तरफ से जानना है, तो ये खुशी हमारी जिंदगी में बढ़ जाएगी। इसलिए लिखा जब तमाम शिगिर्द एक घर के अंदर जमा थे, तो यीशु मसीह लिखा अंदर आ गया, और वहां पर भी अपने लिखा सहीफों को खोल खोल कर अपने मुतालिक बयान करने लगा। तो भाइयों नबी भी जब आते हैं, ये लिखा है खुदा के कलाम में, ये लिखा है। खुदा के खादम क्या कहते हैं? खुदा के कलाम में ये लिखा है। पुराने जो नबी थे वो भी कहते थे फलां सहीफे के अंदर ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, क्योंकि हिकमत का ये मंबा है। खुदा का कलाम हिकमत का, इससे दनाई आती है, ज़हन खुलता है, हिकमत आती है, आसमानी इल्म हमारे अंदर आता है। तो भाइयों आसमानी इल्म, आसमानी हिकमत, आसमानी दानाई लेना चाहते हैं, तो फिर खुदा के कलाम को सुनिए, रूह कुदस की शराकत में रहिए और खादमों की फेलोशिप में रहिए, खुदा की बारगाह में आइए, ताकि आप रोज रोज हिकमत से ममूर होते चले जाएं। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करेंगे और बचाऊंगा थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे। आंखें बंद कीजिए, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाना शुरू कीजिए। सब खड़े हो जाइए। ये वक्त